है, ये प्रोसेस्ड है, देयर इज रेडिएशन ऑल अराउंड, आर्टिफिशियल राइपनिंग हो जाती है, पहले ही तोड़ लेते हैं पेड़ से, फिर उसमें कुछ केमिकल डालते हैं ताकि वो पक जाए. दे आर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, everything is genetically modified, and then the food has to travel long distances, transportation में दिन निकल जाते हैं, और फिर there is so much environmental pollution. तो natural क्या है? कुछ भी natural नहीं है आजकल के जमाने में. And then current lifestyle, who doesn't have stress? Even small children, when they go to school, they have got such huge bags. Even small children have stress, right? And so many people are addicted to tea and coffee, and people are leading sedentary lifestyles. They're hooked to computers and social media. Smoking has become rampant. Sugar is everywhere, and then alcohol. It is social drinking. So we can imagine the current lifestyle. So obviously, it is leading to chronic lifestyle diseases. There is nothing natural left, and nothing is healthier in our lifestyle. This is a very interesting slide. Look at aspartame. I'm talking of artificial sweetener. You can see a lollipop, but you see even ants are not going there. Ants are bypassing the lollipops because cockroaches and roaches and ants, they won't eat it. They understand. Even houseflies don't eat it. But Food and Drug Administration, they serve aspartame to us, जिसके इतने सारे side effects हैं. So can you imagine in nature, I don't know why human beings are using all these artificial things when, small creatures also understand that it's not good for health. Then there is supersizing. Everything, has become double in size. And another interesting fact I want to tell you is, why Coca-Cola came into being? It was made to treat headache, neuralgia, hysteria, depression. And we are giving this to our kids. If you go to any birthday party and you see these aerated drinks, so you can imagine the lifestyle. Nothing is natural. We are not consuming natural drinks, and small children are addicted to it. And because of this current lifestyle, what do we have? We have type 2 diabetes, we have heart disease, high blood pressure, stroke, cancer, and obesity. The risk for all this, and there's an obesity epidemic everywhere, which I'm going to talk about just now. So, but before that, I want to understand that's one more reason why we need to supplement. So, you need to understand RDA versus ODA. So, RDA is recommended daily allowance. उतना हमको पौष्टिकता चाहिए जिससे हम बीमार ना पड़े. अगर हमें उतना भी नहीं मिलेगा तो उसकी डेफिशिएंसी से हम बीमार पड़ जाएंगे या बीमारी हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी. ओडीए क्या होता है? ऑप्टिमल डेली अलाउंस. मतलब अगर हमें पीक परफॉर्मेंस पे रहना है तो हमको ज्यादा क्वांटिटी में सप्लीमेंटेशन की जरूरत है. तो आरडीए क्या होता है? यू नीड इट इन अ अमाउंट ताकि आपको डेफिशिएंसी ना हो और बीमारी ना हो. और ऑप्टिमम डेली अलाउंसेस कि आप वार्ड ऑफ कर सको, जो इफेक्ट्स ऑफ एजिंग है उसको वार्ड ऑफ कर सको, अपने क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क कम कर सको, अपनी इम्यूनिटी बेटर कर सको. उसके लिए हमको ऑप्टिमम डेली अलाउंस चाहिए. अब आप देखिए विटामिन ई, अगर हमको बस बीमार नहीं होना है तो आपको इतना 10 इंटरनेशनल यूनिट से काम चलेगा. पर अगर आपको रियली अच्छा रहना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि आप देखते हैं. सिमिलरली विटामिन सी, आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है. मतलब कि हमारे गम्स जो है उनसे खून निकलने लगता है, उसको स्कर्वी कहते हैं. तो हमारे गम्स से ब्लीडिंग ना हो उसके लिए हमको 60 चाहिए. पर अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी चाहिए तो आपको 2 ग्राम तक विटामिन सी चाहिए. तो यू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू सप्लीमेंट. फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे एग्जाम लेते हैं, सो हम क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ पास मार्क्स लाएं क्या? तो आरडीए जो है वो पास मार्क्स है. पर हम अगर चाहते हैं कि उनके 100 आउट ऑफ 100 आए, वो पीक परफॉर्मेंस पे रहे और वो टॉप कर सके, तो फिर उनको 2 ग्राम चाहिए
vitamin C. So you understand the difference. So that is why supplementation का, vitamin mineral supplementation का बहुत बड़ा रोल है. और नोबेल प्राइज विनर जो थे डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, उन्होंने बताया कि नियरली ऑल डिजीजेस कैन बी ट्रेस्ड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. सारी बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है. तो इसीलिए हम लोगों को सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. सो सप्लीमेंटेशन इज द आंसर. तो इसीलिए हम लोगों को अपने कस्टमर्स को इतने सारे कारण हैं कि हमें सप्लीमेंटेशन क्यों चाहिए. अदरवाइज हमारा मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा. अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन दोनों को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं. तो अंडर न्यूट्रिशन भी बुरा है, और अगर ओबेसिटी हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएंगे, तो वो भी बुरा है, क्योंकि उससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बॉडी में. इतना एनवायरनमेंट में नैनो प्लास्टिक है वो जाता है, जिससे कि बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है. हमारे एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एंडोक्रीन डिसरप्टर्स हैं. ऐसे ही हमारे इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो हमें अटैक करते हैं, और उससे हमारा गट डिसबायोसिस हो जाता है और हमको क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती है. तो अगर हम सप्लीमेंटेशन नहीं लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ अपना रिस्क बढ़ा लेते हैं. और अगर हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको पता है जितने भी हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनमें नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं. फाइटो मींस प्लांट, ओके. फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लाल जो हमारी सब्जी है उसमें लाइकोपीन होता है, किसी में ज़ैंथीन होता है, किसी में येलो में कुछ होता है. अलग अलग रंगों में अलग विटामिन मिनरल होता है, और वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करते हैं. अगर हम नहीं लेंगे विटामिन्स मिनरल्स तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, डायबिटीज, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, और इंफ्लेमेटरी स्टॉर्म बॉडी में जिसको कहते हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है. आपको पता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल बी ओवरवेट और ओबीस बाय 2050. दिस इज द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स. इजंट दैट अलार्मिंग? आधा वर्ल्ड ओवरवेट और ओबीस होगा. हमारे पास सिर्फ 25 साल है. 25 साल में सोचिए क्या होने वाला है हेल्थ. सो वी आर द एजेंट्स ऑफ चेंज. वी हैव टू टेक दैट प्लेज. तो हमें ऐसा नहीं होने देना है. वी हैव टू इंस्टिल, वी हैव टू किंडल द स्पिरिट ऑफ वेलनेस इन पीपल. उनको बताना है हमने कि सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है. ये देखिए, इंडिया में 180 मिलियन पीपल ओबीस हैं, just next to China. चाइना में सबसे ज्यादा है, and then followed by US. So imagine कितना obesity epidemic है. और आपको पता है 73% Indians are overweight. And इसका मतलब है कि हर 4 में से 3 भारतीय overweight है. और मैक्सिमम रिस्क क्या है एज का? 28 साल पे जो नॉर्मल है वो 38 साल पे जरूर ओवरवेट या ओबीस हो जाता है. दिस इज द एज जहां नॉर्मल भारतीय हेल्दी से ओबीस चला जाता है. इसीलिए तो हर 4 में से 3 भारतीय ओबीस है. तो आप सोचिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम है. इसीलिए हमें समझना है कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है. न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है. अब आप ये फील्ड देखिए, फील्ड है, कहीं भी आप देखते हैं जहाँ पे हमारा खेत होते हैं, तो ये उसकी पिक्चर है. तो ऊपर जो आप देख रहे हैं खेत, उसको पानी नहीं मिला है, खाद नहीं मिली है, तो देखिए खेत का क्या हाल. कुछ भी उसमें फसल नहीं उठी है, वो बिल्कुल बंजर जैसा पड़ा हुआ है. पर जो नीचे पिक्चर है खेत की, उसको पानी भी मिला है, उसको खाद भी मिला है, उसको धूप भी मिला है, उसको सारे जितनी खाद में पौष्टिकता चाहिए उसको वो भी मिला है. तो देखिए कैसे हरा भरा हो गया. तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स का भी हाल है. तो अगर बिकॉज ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो अगर हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है तो हमें नहीं होगी क्या? और ये कितनी पुरानी स्टडी है 1940s की, जहाँ की उन्होंने बताया कि अगर हमारे पौधों को
खाद नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, सूरज नहीं मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रोथ होगी, पर उसमें कहीं कहीं पीले पत्ते हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उसमें आपने देखा छेद हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डेफिशिएंसी से ऐसे ही इंसान भी अफेक्ट होते हैं। हमारे नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, हमारी आई साइट वीक हो जाती है, हमारे अराउंड माउथ के अराउंड कट्स हो जाते हैं, जीभ में छाले पड़ सकते हैं, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो इसका मतलब नहीं हम बीमार हैं, पर हमको डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो अगर पौधों को हो जाते हैं तो हमें इंसानों को क्यों नहीं होंगे? तो इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत बहुत जरूरी है। पौष्टिकता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल। तो जो डेली न्यूट्रिशन है, आपको ये समझना है कि मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है। ये एज हर्बल लाइफ वेलनेस कोचेस आप सबको पता है, फिर भी क्योंकि हमारे प्रेफर्ड कस्टमर्स है, आई वांट टू रिपीट। तो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैट्स, फाइबर, हर्ब्स एंड वाटर। तो ये सारी चीजें अगर हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलती हैं तो हम लोग पीक परफॉर्मेंस पे अपना काम कर सकते हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ हट के कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ, और ये एनसीबीआई की स्टडी है। एनसीबीआई क्या है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये सब तो हमें पता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर हम फैट्स और प्रोटीन से अपना दिन स्टार्ट करें, जैसे हम अपना शेक पीते हैं, अपनी टैबलेट्स लेते हैं, तो फैट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और उससे हमको ग्रेजुअल रिलीज ऑफ एनर्जी मिलती है। अगर हम अपना एडिक्वेट प्रोटीन का ब्रेकफास्ट लेंगे तो ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, आपको ज्यादा देर तक एनर्जी रखता है देन हाई कार्बोहाइड्रेट मील। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि इंडिया में पराठा खा लिया, पूरी खा ली, ब्रेड खा लिया, सीरियल खा लिया, तो वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। वो हमारे अंदर जाके इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल कार्ब्स, ब्रेक डाउन इनटू शुगर, और उससे ब्लड शुगर की स्पाइक होती है, इमीडिएट सर्ज होता है ब्लड शुगर का, पर बाद में एनर्जी स्लम्प हो जाती है। तो इसीलिए जब हम शेक पीते हैं तो हमें एडिक्वेट प्रोटीन मिलता है और हम लोगों की एनर्जी ग्रेजुअल रिलीज होती है, और शेक हमारे पेट में 3 से 4 घंटे तक रहता है, क्योंकि वो सस्पेंशन है और उसके साथ हमको गुड फैट्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए हमको एनर्जी फील होती है और हम टायर्ड नहीं फील करते हैं। सेकेंड, फैट्स, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो प्रोटीन है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये हमारे ब्रेन को फ्यूल करते हैं। मतलब ये हमारे ब्रेन का खाना है। अगर हमको सुबह सुबह अपने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोटीन से मिलेंगे, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। देयर आर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन अगर अमाइनो एसिड्स लेंगे और फैट्स लेंगे, ओमेगा 3 गुड फैट्स, तो हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है, हमारा फोकस बेटर रहता है, हम क्लियर सोच सकते हैं और हमें मॉर्निंग में वो थकावट या सुस्तीपन नहीं आता है। प्लस हमारा ब्लड शुगर क्योंकि स्टेबल रहता है तो हमारे इमोशन स्टेबल रहते हैं, और हमको वो जो ग्रम्पीनेस होती है ना, लेजीनेस, इनिशियली तो अच्छा लगता है शुगर लेके, पर बाद में जैसे ही शुगर फॉल करती है हमको आलस आने लगता है, हमको बहुत सारी नींद आने लगती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लेते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और साइंटिफिकली वो देन जब हम प्रोटीन लेते हैं, आपको पता है ना हमारा फॉर्मूला 1 है सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड मिल्क सॉलिड्स, उसमें केसिन होता है। तो वो जो प्रोटीन है वो ग्लूकागॉन को सपोर्ट करता है। ये एक हार्मोन है जो इंसुलिन को काउंटर करता है और हमारे ब्लड शुगर को स्टेडी रखता है। प्लस जो हेल्दी फैट्स हैं, जैसे हम नट्स खाते हैं, ऑलिव ऑयल में है, इन सब से भी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती।
जब इंसुलिन स्पाइक नहीं होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो कॉर्टिसोल का भी नेचुरल रिदम में चलता है। और जब हम एडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं तो हमें बार बार भूख भी नहीं लगती है, हमको तसल्ली होती है, सटाइटी मिलती है। और अगर हम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हम बाद में मंचिंग नहीं करते हैं, हम स्नैकिंग नहीं करते हैं, वी ईट फ्यूअर कैलोरीज, क्योंकि प्रोटीन लेने से हमारा पेट जो है वो भरा रहता है। सो इसलिए आपको समझना है कि प्रोटीन और फैट्स लेने से कितना हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, हमारा कॉर्टिसोल का नेचुरल रिदम मेंटेन रहता है, और इसीलिए ये फिलॉसफी हम लोग फॉलो करते हैं। नॉर्मल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के बारे में तो आप सब जानते हैं। देन बियॉन्ड एनर्जी एंड फोकस, आपको पता है जो शुगर है इट कैन मेस अप विद योर मूड। क्या कहता है, इंसुलिन जो स्पाइक होती है जैसे ही हमने कुछ खाना खाया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाया या कुछ मीठा खाया, तो ब्लड शुगर बढ़ता है बॉडी का। सडनली पैनक्रियास को इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है, इंसुलिन की स्पाइक होती है, तो क्या होता है, थोड़ी देर तक सेरोटोनिन रिलीज होता है, उसे फील गुड केमिकल कहते हैं, और थोड़ी देर बाद ब्लड शुगर ऐसे जाता है और ऐसे फॉल करता है, और जैसे ही ब्लड शुगर फॉल करता है आप क्रैंकी हो जाते हो। प्लस एक्सेस शुगर क्या करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन से हमें सुस्ती आ जाती है, और जैसे ही इन्फ्लेमेशन आती है तो हमें लॉन्ग टर्म इश्यूज आ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन से ग्लूकोज अपटेक डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन जब रेजिस्टेंस हो जाती है तो हम सबको यू कैन डेवलप अ प्री डायबिटिक स्टेज। तो इसीलिए the sugar can really mess up with your mood. तो सुबह सुबह शुगर लेना is not a good idea, and that is why we follow that philosophy of having a shake in the morning, जो हमें संतुलित पौष्टिक आहार है, जो हमें वो सारी पौष्टिकता देता है जो हमें हर रोज ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करने के लिए जरूरत है, पर उसमें नमक, चीनी, तेल और चर्बी कम है। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी हमारी अच्छी रहती है, हमारा फोकस अच्छा रहता है, बिकॉज हम एडिक्वेट अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन लेते हैं और हम गुड फैट्स लेते हैं, तो इसलिए हमारी रिदम भी ठीक रहती है। प्लस जब आप शुगर खाते हैं, मतलब रिफाइंड खा लिया, सीरियल खा लिया, व्हाइट ब्रेड खा ली, पराठा खा लिया, रोटी खा ली, पूरी खा ली, कुछ भी खा लिया, तो एज आई सेड वो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, सडनली ब्लड शुगर बढ़ जाता है। हाँ, तो हमें वो फीलिंग आती है शुगर हाई वाली, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? कभी कभी मीठा खाने से ना यू सडनली गेट दैट सर्ज ऑफ एनर्जी, फिर पैनक्रियाज आपका इंसुलिन बनाता है क्योंकि उसको ग्लूकोज को हैंडल करना होता है, और फिर देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन। तो ये जो रोलर कोस्टर है ना, ऐसे ऐसे जो स्पाइक्स होती है, इससे फैटीग होता है, एंड इंस्टेड ऑफ एनर्जी you want more sugar because आपको लगता है और थोड़ा मीठा खा लो, क्रेविंग ज्यादा हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारे खाने में एडिक्वेट प्रोटीन ना हो हमारे ब्रेकफास्ट में। प्लस हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन लव्स ग्लूकोज, ब्रेन को शुगर चाहिए होती है, और आपको पता है ना कितनी शुगर, बच्चों में 6 स्पून्स and adults can have up to 9 spoons, not more than that. Okay, but it hates wild swings. ब्रेन को अच्छा तो लगता है शुगर, पर ये स्विंग अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है, पर जब क्रैश होता है ना ब्लड शुगर, तो फिर इट इम्पेयर्स योर फोकस एंड मेमोरी। आप देखेंगे कि फोकस ही नहीं कर पाते, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा शार्प मेमोरी नहीं रहती है, कुछ याद ही नहीं रहता है। और जो रिसर्च की गई ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे और कॉग्निटिव फंक्शन पे, ये देखा गया कि अगर हम लो शुगर मील्स लेते हैं तो हमारा को बेटर कंसंट्रेशन होता है, हम बेटर फोकस कर सकते हैं, हम क्लैरिटी से सोच सकते हैं, एंड अगर हम शुगर लेते हैं तो हम by 10 a.m. we start feeling foggy and tired, and then we want to have something, or फिर craving हो जाती है। तो this is what I wanted to tell you about sugar, fats and protein. So I hope you got this. प्लस शुगरी ब्रेकफास्ट जो होते हैं, सपोज कोई लोग शेक नहीं पी रहे हैं, हमारे जो नए कस्टमर्स हैं, सो शुगरी ब्रेकफास्ट आर लो इन फाइबर एंड प्रोटीन। सो
लो इन फाइबर होता है तो हमारा पेट ही नहीं भरता है। और अगर हम हाई ग्लाइसीमिक फूड्स खाएं, जैसे सीरियल खाएं, कुछ भी खाएं ना जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है, जिससे ब्लड शुगर एकदम स्पाइक होता है, तो आप देखेंगे कि सारा टाइम हमको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है और हम थोड़ी थोड़ी देर में स्नैकिंग करते रहते हैं। और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो गेट स्टोर्ड एज फैट। आपको पता है 5 ग्राम्स तक जो ग्लूकोज में हमारा खाना कन्वर्ट होता है ब्लड ग्लूकोज में, इट स्टेज इन द ब्लड स्ट्रीम। उससे ज्यादा इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द लिवर। पर अगर उससे भी ज्यादा ग्लूकोज होता है देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड्स। और अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाते हैं तो नेचुरली आगे जाके वी कैन हैव हार्ट हेल्थ इश्यूज। तो आप देख रहे हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद, अगर हम एडिक्वेट प्रोटीन और गुड फैट्स नहीं लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, और हमारे खाने में शुगरी ब्रेकफास्ट लेते हैं, शुगर्स होते हैं, या हाई ग्लाइसीमिक फूड लेते हैं जिसमें फाइबर की कमी होती है, क्योंकि फाइबर भी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। देयर इज सॉल्युबल फाइबर एंड देयर इज इनसॉल्युबल फाइबर। तो जो सॉल्युबल फाइबर होता है दैट स्टेबलाइजेस ब्लड शुगर, दैट कीप्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन चेक। तो इसीलिए शुगरी ब्रेकफास्ट ना लेके हमारा शेक क्यों लेना है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। फिर अगर हम खाली पेट शुगर ले लेते हैं, इट मेसेस अप विद योर हार्मोन्स। इंसुलिन, इतना सारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट करना पड़ता है, कभी कभी इंसुलिन ओवर करेक्ट कर देता है और आपका ब्लड शुगर फॉल कर जाता है। आपने देखा स्पेशली डायबिटिक्स, कभी कभी उनका ब्लड शुगर फॉल कर जाता है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उससे चक्कर आने लगता है, उससे दे कैन फील गिडी, सडनली पसीना आने लगता है, ब्लैकआउट हो जाता है। और जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, दैट आल्सो गोज ऑफ बैलेंस। एंड अगर हम ये हमारे खाने में एडिक्वेट प्रोटीन ना हो और शुगर ज्यादा हो तो कॉर्टिसोल के भी स्पाइक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सबको घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, और हमारा फोकस चला जाता है, और हमें बहुत सारे एंजाइटी शुरू हो जाते हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। सो यू कैन सी कि क्या क्या होता है अगर हम अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान ना दें, तो हमारा ब्रेन ठीक काम नहीं करता है, हमारा मूड ठीक नहीं होता है, हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हम बार बार भूख लगती रहती है, हमें तसल्ली नहीं होती है, हम बार बार स्नैक करते रहते हैं, तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन, सो दैट हमारा कॉर्टिसोल चेक में रहे, हमारे हार्मोन्स चेक में रहे, हमारी स्लीप चेक में रहे, हमारा फोकस चेक में रहे। सो हर्बल लाइफ में हमारा क्या मिशन है? हमारा मिशन इज फॉर न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड एवरीडे हेल्दी न्यूट्रिशन टू सपोर्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड दैट इज व्हाई वी डू हर्बल लाइफ फॉर लाइफ। हम लोग 25 साल से हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू यूज इट till end of our life. And as I said, हमारे 4 generations अब सब मॉर्निंग में इकट्ठे शेक पीते हैं. So that's the magic of this good nutrition. And this is what Mark started and impacted millions of lives around the globe. We are so thankful to God. And on World Health Day, Mark has made such a great contribution around the world. See what a single person can do. So all of us can make a difference. Just remember Mark, how he made a difference. Similarly, we can also make a difference in somebody's life. And let us continue this legacy. So now, we all know that, we have worldwide, we have high-profile athletic partnerships because every day need nutrition and they believe in the philosophy of nutrition, and that is why now we have, Ronaldo with us, and now he's a partner with us. And एक चीज आपको ध्यान रखनी है that Herbalife is not dieting. Herbalife is nutritional rebalancing. जहाँ पे जब हम अपने Herbalife products लेते हैं तो हमारे कोई cellular cleansing होती है. It removes toxins from the body, it creates lean muscle, and it melts away excess fat. So nutritional balance keeps your body clean, it removes the toxins, and this is the best food available. And this is just a joke. 100 of years of medical progress, and all you can tell me is to eat less. The patient is telling a doctor कि कुछ और भी तो बताओ. तो डॉक्टर सिर्फ कहता है कम खाओ, उसको न्यूट्रिशन बता ही नहीं रहे, बिकॉज अब डॉक्टर्स को
न्यूट्रिशन पढ़ाया ही नहीं जाता है मेडिकल स्कूल में। हमको सिर्फ बताते हैं कि बीमारी कैसे कैच करनी है और कैसे इलाज करना है बीमारी का। So this was just in the lighter vein. So our Herbalife products, it is healthy food. It is not diet food. It is healthy food, not diet food. Please remember this. And we don't make any medical claims. We are food. Okay, so what do we offer? So we offer plant-based nutrition, which gives you balanced energy. They give you good fats, fiber, antioxidants, and one can customize to individual needs. So we have personalized and customized program with Herbalife. Okay. And you know what global nutrition philosophy, you all know 30, 30, 40. Do you know Herbalife, this 30, 30, 40 came into being in 1940s by Barry Sells. And this is the most widely accepted global nutrition philosophy. And Herbalife also believes in this widely accepted philosophy. That means that we need 30% of protein in our diet, 30% of good fats, 40% of carbohydrates, and these are within the acceptable macronutrient distribution ranges. This is also accepted by Institute of Medicine of the National Academics. So, globally, this is a widely accepted philosophy, जो at Herbalife Institute we follow. Plus, as I said, we need good fats, omega-3. We need to take care of our hydration. And as wellness coaches, we are all taught for every 20 kgs, we require 1 liter of water. Rest, very, very important. As I said, 6 to 8 hours, preferably 7 to 8 hours of sleep is very, very important. Otherwise, the stress hormone, the cortisol hormone goes out of rhythm. It causes inflammation in the body. There is insulin resistance, glucose metabolism gets affected. So, that is the time during sleep when muscle resynthesis is happening. Protein is being used to resynthesize muscle. So, our body, although we may be asleep, but our body is working. So, rest is very important. That is the time when body is being repaired. So, we need 40% of carbohydrates, preferably complex. So, as I said, Herbalife does not make any medical claim. Yes, people get better because, they lose fat, they gain muscle, so they reduce the risk of chronic diseases. Their medication goes down, but we don't make any medical claim. We don't diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Please remember this. So now I have divided this nutrition into two. So one is I'm going to go through the products, so very briefly. So let us divide it into core nutrition and targeted nutrition. core nutrition क्या होता है? core nutrition वो है जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है और हमको अपने खाने से ये सारी पौष्टिकता की जरूरत है क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं बनता है। तो कोर न्यूट्रिशन में ये 4 चीजें आती हैं। प्रोटीन, लिख लीजिए प्लीज, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। ये सारी चीजें हमको अपने खाने से चाहिए क्योंकि ये बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। दूसरा जो पोर्शन है हमारा वो है टारगेटेड न्यूट्रिशन, जो हमें स्पेसिफिक नीड्स के लिए चाहिए, पर ये हम सबकी जरूरत है। जैसे हम एडल्ट बन जाते हैं, everybody needs it, boys, girls, young, old, everybody needs it. So this is our core nutrition. So which includes Formula 1, that is, and when we add Formula 2 is multivitamin, mineral and herbal tablets. Then we have Formula 3, which is personalized protein powder.
And then we have Herbalife line, which are good fats, which is omega-3. So the thing to remember about Formula One, as I was talking about fats and proteins, तो जब हम ये ब्रेकफास्ट अपना दिन इस ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं शेक पी के, so when we take 1 serving or 3 spoons of Formula One, we get 9 grams of protein and we get 90 calories. When we add 2 spoons of PPP, we will get 10 grams of protein. And if we add shake mate, then we get another 10 grams, or if we make it in milk, then also we get approximately 10 grams of protein. So जब हम shake बनाते हैं, we are getting 30 grams of protein. And there is a scientific study that if we take 25 to 30 grams of protein at each meal, then our muscle synthesis will be good, and our weight management will be much better. We will not feel hungry. So when we take this, we are taking adequate protein. It also gives us 3 grams of fiber. So, when we are doing this, so there is going to be a slow release of energy. Another thing you must understand about Formula One is कि हमारा Formula One blend है सोया प्रोटीन का, वे प्रोटीन का और केसिन का, which is milk solid. So जब सोया प्रोटीन जब हम शेक लेते हैं तो वे प्रोटीन मेटाबोलाइजेस क्विकली, तो हमको इमीडिएटली एनर्जी फील होती है. पर सोया प्रोटीन टेक्स अबाउट 3 to 4 hours टू मेटाबोलाइज. इसीलिए हमको 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि ये शेक हमारे पेट में रहता है एज सस्पेंशन, और सोया प्रोटीन धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है, वे प्रोटीन इमीडिएटली मेटाबोलाइज होता है. तो आपको सर्ज ऑफ एनर्जी रहती है, पर वो एनर्जी 3-4 घंटे तक रहती है. प्लस ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला 1 लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है. सो इसीलिए कॉर्टिसोल चेक में रहता है, हमारी सर्कैडियन रिदम चेक में रहती है, हमको भूख नहीं लगती है, हमको सैटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि ये ब्लेंड है. तो ये हमको याद रखना है, बिकॉज दिस गिव्स यू एडिक्वेट प्रोटीन एंड फाइबर. तो इससे शुगर जो है वो स्लोली रिलीज होती है, एंड देयर इज नो ब्लड शुगर स्पाइक एज आई वाज टॉकिंग अर्लियर. सेकेंड इज multivitamin mineral herbal tablets, जो मैंने बताया why we need them to perform at the optimum level. And then of course we have good fats, which is very very important for our brain health, for our heart health, for our eye health, for everywhere. Herbal lifeline is very 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 important. So the label says 1 capsule twice a day, but according to science you can take 1.2 to 1.8 grams. So you can even take more of Herbal Lifeline to perform at the peak level. So most common nutrient deficiency जो women में होती है, that is vitamin D, magnesium, B12, iron and calcium. पर आपको पता है हमारे फॉर्मूला 2 में अब आयरन भी है, सेलेनियम भी है, जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है. So that is why the core nutrition is very very important for everybody, but especially for women, because उनमें ये deficiencies ज्यादा देखी गई हैं. तो अब तो जो डेफिनेशन के हिसाब से, जो साइंस के हिसाब से, जो वेट लॉस शेक है, जो मील रिप्लेसमेंट शेक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप सब लोग लिख सकते हैं. बेस्ट मील रिप्लेसमेंट शेक में कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए. हर सर्विंग में कम से कम 3 ग्राम फाइबर होना चाहिए. हर सर्विंग में 10 ग्राम से कम शुगर होना चाहिए. There should be no corn syrup. There should be no hydrogenated vegetable oil or trans fat. Vitamins and minerals must meet 33% of their daily requirement. आजकल आप देखते हैं बहुत सारी vitamins tablets मार्केट में मिलती हैं, पर उसमें थोड़ा थोड़ा सब डालते हैं, पर 33% नहीं होता है. सो नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होता है, उसको लगता है इसमें सब कुछ है. पर हमारा चैलेंज क्या है? टू टेक इन एडिक्वेट क्वांटिटी.
फिर उसमें अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। एंड वे प्रोटीन इज यूजफुल इन अ मील रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो जल्दी से एनर्जी देता है, वो जल्दी से मेटाबोलाइज होता है। तो अब देखिए हम अपने शेक को देखते हैं। हम जब शेक बनाते हैं, 9 ग्राम्स फॉर्मूला 1 से मिलता है, 2 ग्राम्स पीपीपी डालने से हमको 10 ग्राम मिलता है, और अगर हम शेक में डालते हैं तो हमको 29 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। सो हमारा कॉलम टिक हो गया। हमारे शेक में 3 ग्राम फाइबर है, ये कॉलम भी टिक हो गया। हमारे शेक में 10 ग्राम से कम शुगर है। 100 ग्राम्स में हमारे शेक में 25 ग्राम है, तो एक सर्विंग में कितनी हुई? 6 ग्राम। तो ये कॉलम भी टिक हो गया। वी हैव ओनली 6 ग्राम्स ऑफ शुगर पर सर्विंग। हमारे शेक में कोई कॉर्न सिरप नहीं है, हमारे शेक में कोई हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल नहीं है, हमारे विटामिन्स मिनरल्स दे अकाउंट फॉर 33% ऑफ डेली वैल्यू। हमारे शेक में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन है। इट्स अ ब्लेंड ऑफ सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड केसिन एंड वे प्रोटीन। तो कहीं तो आप देख रहे हैं जो हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो न्यूट्रिएंट रिच है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, ये नॉन ग्रीसी है, और जब हम शेक ऐसे बनाते हैं तो वी कैन गेट अप टू 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। So best weight loss shake है हमारा, because we tick all the boxes and we should be very happy about this, because science के हिसाब से we have ticked all the boxes. We have the world's best weight loss meal replacement shake, and that is why हम 25 साल से पी रहे हैं और लाइफ लॉन्ग पीने वाले हैं। आई एम श्योर आप सब भी पीने वाले हो, और आप सबको भी वो मजा आता है जब हम अपना सुबह सुबह दिन शुरू करते हैं शेक पी के, और फ्रेश पी के मैं थोड़ी सी पी लेती हूँ। ओके ओके, कार्डियक वेलनेस के लिए हमारे पास नाइटवर्क्स है और बीटा हार्ट है। तो नाइटवर्क्स क्या करता है? नाइटवर्क्स हमारे मसल सिंथेसिस को बेटर करता है। इट्स अ वेज़ोडाइलेटर। तो अगर हम अभी तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, पर अगर हम नॉर्मल जो व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रोडक्ट्स, तो नाइटवर्क्स लेने से पहले अगर हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें से ब्लड जाता है, राइट? जैसे तो अगर उसका ल्यूमन कम है, पर अगर नाइटवर्क्स लेंगे तो उसका ल्यूमन बड़ा हो जाता है, तो उसमें ज्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है। तो जब ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा तो हम बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, हमारी एंड्योरेंस बेटर हो जाएगी। सिमिलरली हम अगर नाइटवर्क्स विदिन 2 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम अपना शेक लेते हैं या नाइटवर्क्स लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलेशन है वो हमारे टिप्स तक पहुंच जाता है। सो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं आपके टिप्स तक पहुंचता है। सो इट जस्ट इंक्रीजेस द सर्कुलेशन इन योर बॉडी। सिमिलरली बीटा हार्ट इज हार्ट फ्रेंडली, तो इसमें ओट पाउडर है, इट हैज बीटा ग्लूकॉन पाउडर इज ओट पाउडर, तो ये हार्ट फ्रेंडली होता है, ये ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। So it is a great beta heart is the sort of fiber which reduces the risk of heart disease. It maintains your cholesterol levels. तो cardiac wellness ये और beta heart है। Let us talk about gut wellness. आपको पता है there is something known as gut brain axis, और हम gut को second brain कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे खाने में पौष्टिकता की कमी, मील्स लेते हैं, अगर हमारे शुगर ज्यादा है, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, उससे हमारी इंटेस्टाइन जो है अफेक्ट हो जाती है। हमारा इंटेस्टाइन और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन, अगर हमारी इंटेस्टाइन्स अच्छी रहती है तो हम ब्रेन से क्लियरली सोच सकते हैं, हमारी मेमोरी बेटर होती है, हमारी कंसंट्रेशन बेटर होती है, सब कुछ, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को जाते हैं। पर अगर हमारी गट अच्छी नहीं है तो नेचुरली हम इरिटेबल हो जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सिमिलरली ब्रेन जो है वो डायरेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, तो दिस इज नोन एज गट ब्रेन एक्सिस। तो जब भी स्ट्रेस होता है, जब भी हम लोग कोई फ्राइड फूड खाते हैं, या हम शुगरी फूड खाते हैं, या हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, या इवन बच्चों को बॉटल फीड कर रहे हैं, तो हमारी गट हेल्थ जो है गेट्स अफेक्टेड। एंड डेली खाने में भी देयर इज सो मच व्हिच कैन अपसेट आवर माइक्रोबायोम,
और माइक्रोबायोम जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे गट बैक्टीरिया है, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट मैनेजमेंट, फॉर आवर इम्यूनिटी, फॉर एवरीथिंग, फॉर आवर ब्रेन फंक्शन, फॉर हार्ट फंक्शन। सो गट माइक्रोबायोम का बहुत रोल है। सो वी हैव सिंपली प्रोबायोटिक, जिसमें 2 बिलियन स्पोर्स ऑफ गैनेटिन लीसिन है, जो हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट को बाईपास करते हैं और डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाते हैं, और जहां हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो दिस इज सिंपली प्रोबायोटिक, जो आप सैचे एक पानी में घोल के पी सकते हैं, और अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है तो आपका सब कुछ अच्छा रहता है। देन वी हैव शेकमेट। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या लैक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन है, तो हम लोग शेकमेट ले सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस कब होता है? हमारे पेट में एक एंजाइम होता है जिसको हम लैक्टेज कहते हैं। तो जो हम दूध पीते हैं, वो जो लैक्टोज शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जिन लोगों में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, तो ग्लूकोज जो लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है और वो सीधा पास हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है। तो इसलिए शेकमेट में 1/3 द लोड है ऑफ लैक्टोज। सो दैट इज व्हाई जिन लोगों को लैक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन है, वो शेकमेट में बना सकते हैं। 1 serving will give them 10 grams of protein. So it is a great thing to have. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दूध अवेलेबल नहीं है, तो आप ये पाउडर फॉर्म में है, आप इसको ले जा सकते हैं। शेकमेट ऐड करिए और सिर्फ पानी डालिए। आप फॉर्मूला 1 ऐड करिए, पीपीटी ऐड करिए, शेकमेट ऐड करिए और पानी ऐड करिए। तो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी रास्ते में है जहाँ दूध अवेलेबल नहीं है, तो शेकमेट कम्स वेरी हैंडी एंड यू कैन हैव शेक ऑन द गो। बट अगर कोई आइसक्रीम खा सकता है, अगर कोई बटर खा सकता है, तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं, बिकॉज इन सब में भी लैक्टोज होता है। तो अगर किसी को लैक्टोज मैल एब्जॉर्प्शन है, तो शेकमेट इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड विल कवर इट समटाइम लेटर। An active fiber complex is a very useful product. As I said, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर जो है ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। एंड वी नीड, साइंस सेज we need about 30 to 40 grams of fiber every single day. So हमारे शेक में 3 ग्राम फाइबर है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 serving will give you 5 grams of fiber. ये मिक्स है ऑफ सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो बल्क ऐड करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपकी बावल मूवमेंट को बेटर करता है, आप सो दैट यू कैन क्लियर योर बावल्स नाइसली। बट इसमें जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। सो इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू ऐड फाइबर टू योर शेक, और यू कैन टेक इट सेपरेटली। Then for gut health we have aloe concentrate, और क्लियोपेट्रा के टाइम से aloe has been associated with beauty and immunity, and it's a gastric soother, and it is so tasty. You can make a morning drink with aloe, with fresh. You can have, there are so many recipes. You can just make a refreshing drink, especially in summers, with aloe concentrate. And also we have aloe tablet. Now we talk of skin wellness. So for skin, you must know that skin is the largest organ of the body, and it has 6 layers. And if you spread your skin, it can form a carpet. So, और इस skin का हम ध्यान भी नहीं रखते हैं। और आप लोग ने सब लोगों, as a doctor I can say, हम लोग देखते हैं who have one eye, who are not so blessed. किसी किसी का एक किडनी होता है। आपने देखी ना ऐसे लोग, किसी किसी को किसी का अपेंडिक्स नहीं होता है, किसी का गॉल ब्लैडर नहीं होता है, पर आपने कोई भी इंसान ऐसा देखा है जिसकी स्किन नहीं होती? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्किन प्रोटेक्ट्स यू
protects you from harsh chemicals, from harsh environment. It maintains your body temperature. जब आप sweating होती है, so आपकी cooling हो जाती है. It is protecting all the organs inside. So skin is very, very important. और बच्चों की स्किन कैसी सपल होती है, पर जैसे जैसे एजिंग होती है हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, सैगिंग हो जाती है, थोड़ी फाइन लाइंस आ जाती हैं. तो वो क्यों होता है? जो फाइन लाइंस हो जाती है, जो एजिंग होती है स्किन की, वो क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. जो हम हवा लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसमें, दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन. और जैसे आप केला बाहर रख दीजिए तो वो जो एयर होगी उसमें काला हो जाएगा. आप सेब काट के रख दीजिए तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन सेब काला हो जाएगा अगर आप काट के रखेंगे. सो एवरीथिंग गोज बैड. सिमिलरली आवर स्किन. सो जो ऑक्सीजन होती है एयर में, उससे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिससे फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं. और फ्री रेडिकल्स की वजह से एजिंग होती है, जिससे फाइन लाइंस होती है अराउंड द आईज, around your mouth, in your neck and everywhere, and your skin can sag. और जो हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं विद एज. सो जो कोलेजन होता है वो इलास्टिक फाइबर्स के टूटने से सैगिंग हो जाती है. तो उसके लिए हमारे पास स्किन बूस्टर है which is orange flavor. It's so tasty. It is collagen and it comes from fish and it has got vitamins. एंड आप 12 वीक्स तक यूज करो और देखो आपके डार्क सर्कल्स, आपकी फाइन लाइंस में कितना फायदा हो जाए. देन अनदर प्रोडक्ट वी हैव फॉर स्किन इज ऑफ कोर्स सेल्यूलोज. तो आपको पता है सेल्यूलोज क्या है? इट वर्क्स ऑन सेल्यूलाइट. अब सेल्यूलाइट क्या है? सेल्यूलाइट इज अ ओवरग्रोन फैट सेल. जब हमारे हमारे कुछ जो फैट सेल होता है हमारी स्किन के नीचे, वो साइज में बढ़ जाता है और उसमें थोड़े टॉक्सिन्स या थोड़ा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है. जब फैट सेल का साइज बढ़ता है तो वो आपकी स्किन को पुश करता है, तो हमारी स्किन की स्मूथनेस चली जाती है. तो आप देखेंगे डिंपल्स हो जाते हैं स्किन पे, आपकी स्किन में स्मूथनेस नहीं रहती है. या थोड़े थोड़े जैसे पेट पे हो जाते हैं, थाइस पे हो जाते हैं. सो यू कैन सी सम blobs of skin. So cellulite उसको कहते हैं. तो सेल्यूलोज जो है, इट वर्क्स ऑन सेल्यूलाइट, टेक्स केयर ऑफ वाटर रिटेंशन, इट ब्रेक्स डाउन दोस फैट सेल्स एंड टेक्स आउट द टॉक्सिन्स. और इसमें होता क्या है, जो आपने वो देखा है ना कॉर्न, उसका जो भुट्टा देखा है, जो भुट्टे के बाल होते हैं ना, ये उससे बना होता है. सो दैट रियली हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन. सो दिस इज फॉर स्किन वेलनेस. Then of course we have our skincare, and we have combined Ayurveda with science, and it's such a lovely product line. And I use it every day, and my skin says thank you in the morning. The cleanser has got such an amazing flavor, and toner is so nice. And serum से आप देखेंगे कि आपकी fine lines कम हो जाती है, and moisturizer also has such a nice smell. So you have to use it. Keep doing skin challenges. Keep doing skin wellness programs, keep giving skin experience. It is an amazing product line because इसमें सब कुछ natural है. It is paraben free, it is sulfate free, there are no chemicals, everything is natural, and it is just simply amazing. So for energy, we have cell activator, and what gives energy? It has a very powerful antioxidant जिसको हम resveratrol कहते हैं. Resveratrol comes from black grapes and pomegranate. Or because resveratrol is such a powerful antioxidant, so whenever you take cell activator, you really feel energetic. The second, our favorite product is Afresh, and we can always say cheers with Afresh any time of the day. So this is our energy drink, which comes in so many flavors. And but what you have to remember is it has 50 servings, and every serving gives you 40 milligram of caffeine. This is what you need to remember. So please write down. Don't exceed 200 milligram is the safe limit, desirable. You can have up to
200 milligram of caffeine absolutely safe, but cut off is 400 milligram. So इसमें लिखा है, if you have a fresh, you should be careful, because herbal control also is a combination of black tea, green tea and yellow tea, जिसको हम oolong tea कहते हैं, and this also has 80 milligram of caffeine. तो अगर हम herbal control की 2 tablets लेते हैं, 1 tablet twice a day, so we are already taking 160 milligram of caffeine. That leaves you 240 milligram of caffeine. इसका मतलब आप 6 चम्मच से ज्यादा अफ्रेश दिन में नहीं ले सकते हैं। और अगर आप बाई चांस कहीं जा रहे हैं, कॉफी चाय पी रहे हैं, तो फिर then you should be careful. Never exceed excuse me 400 milligram of caffeine, नहीं तो उसके थोड़े से uncomfortable हो जाता है. One can have palpitation and one may not feel good. तो अगर because we love our fresh, तो आप जो है आधा चम्मच डालिए या 1 चम्मच डालिए और पानी डालिए, और वो आधा आधा या 1-1 चम्मच करके आप 6 बार अफ्रेश पी सकते हैं. उसमें पानी ज्यादा डाल सकते हैं, but don't exceed the limit of caffeine. So all these 3 products give us energy and you feel refreshed. और कैफीन से डरना नहीं है, because caffeine is a brain stimulant. It energizes you. It is a great product. It improves our stamina. It improves focus. It improves concentration. It improves, you feel energetic. You get energy, but don't exceed the caffeine limit. Then let us talk of bone and joint wellness. And as I told you, bone and joint wellness is very, very important. हमारे teenagers से, you have to teach them to eat healthy. क्या होता है, पीक बोन मास 30 इयर्स पे होता है, उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है, और हर 10 साल में 5% हमारा बोन मास और मसल मास कम होता जाता है, एवरी 10 इयर्स. तो हमें अपने टीनेजर्स को भी शुरू से सिखाना है कि वो डेयरी में दूध, दही, पनीर खाएं, ताकि उनको कैल्शियम मिले नेचुरल, और वो कैल्शियम सप्लीमेंट लें, क्योंकि उनकी बोन्स बन रही होती हैं, और पीक बोन मास 30 तक अचीव होता है. और उनको सिखाना है कि वो एरिएटेड ड्रिंक्स ना लें, क्योंकि एरिएटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, उससे कैल्शियम निकल जाता है बॉडी का. इट लीचेस कैल्शियम फ्रॉम योर बॉडी. And we don't want weak bones for our teenagers. Especially during pregnancy, calcium is very important. During lactation, calcium is very important. नहीं तो मदर का मिल्क अच्छा नहीं होता है. Similarly, perimenopause, menopause तो वैसे ही डिक्लाइन होता है, तो इसलिए calcium is very important. So it is very important to supplement with calcium tablet. Calcium is the most abundant, mineral in the body. And it is very important for bone health, for strong bones and teeth. And आपको पता है, खाली bones और teeth के लिए नहीं, it lowers your blood pressure. It calcium reduces the risk of colon cancer, मतलब intestinal cancer. It reduces the symptoms of premenstrual syndrome. So calcium is very, very important. But when we take calcium, we must drink adequate water. नहीं तो फिर स्टोन होने का खतरा होता है. So we must use lot of water when we are using calcium. Joint support में of course glucosamine है, which helps with joint health. It has Fruteria root and it has copper and manganese and very, very important minerals. So one must take joint support, and I've really seen great results with joint support and for joint health. So now let's talk about my favorite product, because I'm a gynecologist and this Woman's Choice is for women, and this is an amazing product, and I was so blessed that I could launch it with Dia Mirza and our country director Ajay Khanna. So it has soya isoflavones and chasteberry. So what chasteberry does, it has 127 milligram of chasteberry. तो चेस्टबेरी क्या करता है, जो पीरियड्स के टाइम में या हमारे जो एवरी मंथ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के वजह से जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनको बहुत हेल्प करता है. पेरीमेनोपॉज में, मेनोपॉज में,
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में चेस्ट बेरी बहुत हेल्प करता है। सिमिलरली इसमें आइसोसोया फ्लेवोन्स है, सोया आइसोफ्लेवोन्स, ये इसमें 60 मिलीग्राम ऑफ सोया आइसोफ्लेवोन्स है, जो आपके ड्यूरिंग पीरियड टाइम्स या मेनोपॉज टाइम्स मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, विजाइनल ड्राइनेस होती है, बहुत सारे फटीग होता है, तो उन सब में ये वुमेन्स चॉइस हेल्प करती है। जब से पीरियड स्टार्ट होता है तब से ले सकते हैं, जब मेनोपॉज हो जाता है, मतलब all women can use, not during pregnancy and lactation. Please don't take this during pregnancy and जब आप फीड करते हैं। इन दोनों पीरियड को छोड़ के जब से आपका पीरियड स्टार्ट होता है, या आप पेरीमेनोपॉज है, आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं पर अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है, या मेनोपॉज हो गया है, नेचुरल हो गया है, या आपका यूट्रस निकाल दिया गया है, सब वुमेन्स चॉइस यूज कर सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम नहीं यूज करना है। वुमेन्स चॉइस फर्टिलिटी में हेल्प करता है, चेस्ट बेरी मेनोपॉजल सिम्टम्स में हेल्प करता है, जो पीरियड से पहले ब्रेस्ट में पेन होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। अब आइसोफ्लेवोन्स क्या होता है? आइसोफ्लेवोन्स आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटो मीन्स प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट से आते हैं। और ये एक स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग की, जो कहती है कि अगर हम 40 से 80 मिलीग्राम तक डेली सोया आइसोफ्लेवोन्स लेंगे तो हमारे जितने भी पीरियड के टाइम में पीएमएस सिम्टम्स हैं या मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये कौन से पीएमएस सिम्टम्स में हेल्प करता है? पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान पेट में दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट्स में पेन हो सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन हो जाती है, नींद ठीक से नहीं आती है, सारे जॉइंट पेन्स हो रहे होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, भूख ठीक से नहीं लगती है, किसी किसी को पिंपल्स निकल आते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो जितने भी ये सिम्टम्स हैं इनके सिम्टम्स को कम करता है। ओके, तो ये वुमेन्स चॉइस का फायदा है। सिमिलरली पेरीमेनोपॉज वो होता है जब मेनोपॉज नहीं होता है। मेनोपॉज तब कहते हैं जब पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। 1 साल तक अगर पीरियड्स ना हो तो उनको फिर हम मेनोपॉज कहते हैं। बट ये सिम्टम्स जो है, ये पेरीमेनोपॉज का फेज जो है 5-10 साल चल सकता है, तो उसमें भी इरिटेशन होता है, फटीग हो जाता है, थकावट हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सो इन सब सिम्टम्स में वुमेन्स चॉइस से फायदा हो सकता है। ओके, तो दैट वाज अबाउट वुमेन्स चॉइस। तो वुमेन्स चॉइस पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में ले सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू मेल फैक्टर। तो मेल हेल्थ भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फीमेल हेल्थ। जैसे हमें मेनोपॉज होता है ऐसे मेल्स में भी एंड्रोपॉज होता है। देयर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन, और आजकल लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर वर्क प्लेस में बहुत स्ट्रेस है, वो रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, या सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का, स्मोक करते हैं, या और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल, मीठा बहुत खाते हैं, या जो भी हो ना, दैट मींस अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, उन सब से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं। एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू, इनफर्टिलिटी का रेट बहुत बढ़ गया है। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्पर्म काउंट अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बहुत सारे कार्डियक इश्यूज जल्दी एज पे हो रहे हैं। तो इन सब से मेल परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो हमारे पास मेल फैक्टर है जिसमें फेनुग्रीक है, फेनुग्रीक इज मेथी दाना, एंड इसमें पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है। जो पाइन बार्क और जो सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन इज अ वेजोडाइलेटर, ये सर्कुलेशन इंप्रूव करता है,
टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है ये सब, और परफॉर्मेंस बेटर करता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर मेंस हेल्थ, जिसको हम मेल फैक्टर कहते हैं। Then of course we have ocular defense, and ocular defense हमारी आई साइट के लिए है। So अगर हम लोग सब कुछ taken for granted लेते हैं और slowly around 40s 50s we realize कि ठीक से पढ़ा ही नहीं जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, या हम सारे लोग कंप्यूटर्स पे होते हैं। So ब्लू लाइट बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उससे क्या होता है, हमारी आई साइट जो है अफेक्ट हो जाती है। कई बार हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फैटीग हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। तो इसलिए ऑक्यूलर डिफेंस में हमारे पास ल्यूटिन ज़ियाज़ैंथिन है। आपको पता है, अगर हमारे खाने में ल्यूटिन ज़ियाज़ैंथिन नहीं है, या हम हरी सब्जियां अच्छे से नहीं खा रहे हैं, कंप्यूटर पे बहुत बैठ रहे हैं, तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन होती है। मैक्यूला एक आई का पार्ट है, और उसमें डिजेनरेशन होने लगती है, तो हमको क्लियरली दिखता नहीं है, फोकस नहीं होता है, फैटीग हो जाता है, आईज में हम लोग को बहुत ज्यादा जैसे थकावट हो जाती है। तो हम, और आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी आईज अच्छी होती है? रैबिट की, है ना, क्योंकि वो गाजर खाता है। आपने कभी देखा रैबिट को चश्मा पहने? नहीं ना। तो हम लोग को गाजर खानी चाहिए, ऑफ कोर्स, दैट इज कोर्स, बट इसमें ऑक्यूलर डिफेंस में विटामिन ए है, जो हमारी विजन के लिए बहुत अच्छा है। जो ल्यूटिन ज़ियाज़ैंथिन है, ये ब्लू लाइट को फिल्टर करते हैं, जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है उसको कम करता है। इसमें विटामिन सी है, जो कि आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये हमारे फॉर्मूला 2 में भी है। हमारे कंप्लीट न्यूट्रिशन इज बेस्ड ऑन विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, गुड फैट्स, फाइबर, सप्लीमेंटेशन। तो इसमें भी ये सब है। इफ वी टेक 1 कैप्सूल अ डे, मैंने देखा है हमारे कस्टमर्स को बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे कंज्यूमर्स को इससे मिला है, और मैं खुद ये सब यूज करती हूँ। फिर बच्चों को कैसे भूल सकते हैं? चाइल्ड न्यूट्रिशन we cannot forget, and they are such amazing flavors, chocolate and strawberry. तो ये हमारे बच्चों की ग्रोइंग नीड्स को पूरा करता है। उनके पीक ग्रोथ का टाइम होता है, दे शुड गेट ऑल द विटामिन्स, मिनरल, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसमें प्रोटीन है, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और हमने शुरू में एक स्लोगन बनाया था कि जो बच्चों से करे प्यार, वो हर्बल लाइफ से या डाइनो शेक से कैसे करेगा, एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। और हमारी ग्रैंड डॉटर भी सुबह स्कूल जाते हुए, शी ओनली हैज डाइनो शेक, चिल्ड्रन लव इट। वो रूखा भी खा सकते हैं, उसको ऐसे दूध में भी पी सकते हैं, एंड दे रियली लव डाइनो शेक, एंड दे आर ऑल डाइनो किड बेबीज, and their growth is so good, their immunity is so good. So this is one product, which we have to give to our children. It will take care of their growing needs. और हम बहुत सारी चीजें इसको प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। We can do painting competitions, we can do shake competitions, dino shake competitions, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों को बुला के, and we can do sampling, and such a great idea, and children really love it. और वो जल्दी से पी जाते हैं, and they want to come first, and you can give small prizes. There's so many things you can do with our products. And of course, how can we forget our sports nutrition? Hydrate is my favorite product. I have it during my exercise. It is electrolyte solution, and amazing taste. So इसमें vitamins भी हैं, इसमें electrolytes हैं, और ये जब हम you can take it before exercise, during exercise. गर्मियों के दिन होंगे, बहुत सारा, Delhi is already hot and we are going to sweat a lot. In fact, even west region gets very hot. तो पसीना आ रहा होता है, we are losing electrolytes. So एक तो we must drink, at least all of us drink 3 to 4 liters of fluid, because 2.5 liters is what we lose through urine and sweat. उसको हमें replace करना है. Plus we are losing electrolytes. So this is an amazing thing. इसको bottle में डाल के ले जाइए, और you can keep feeling refreshed,
It improves your endurance, it improves your performance when you're exercising, it keeps you refreshed, and it is an amazing product. और आप वैसे भी पी सकते हो, इससे hydration आपका better हो सकता है. And then if you are a regular athlete and you are doing strength training and you're doing other exercises, then this is Rebuild Strength, which is made up of milk protein. It has got casein, it has got whey protein isolate with glutamine, and it has got branched chain amino acids. So this is a great product because each serving will give you 24 grams of protein. And according to our global nutrition philosophy, when we talk of 30, 30, 40, and when we calculate it or break it down, it comes down to using 1 gram of fat per kg, 2 grams of protein per kg, and 3 grams of carbohydrates, preferably complex, per kg. So, if you take Rebuild Strength, since it gives 24 grams of protein, you can complete your protein requirement. It will improve your endurance because it has branched chain amino acids. It helps in muscle resynthesis. The muscle repairs faster if you take an amazing chocolate flavor. Everybody loves the taste. Okay, so this is about our sports nutrition. All great athletes have been using this Herbalife. And then, of course, we have Vritti Life. We have skincare, and we have Ayurveda has been combined with modern science, and brain health is really amazing. Brahmi, I use all the products, but since I've been using brain health, I feel that my focus and concentration and memory has definitely improved because this has got pure Brahmi, and the results are amazing. As we age, our cognitive ability goes down. We start forgetting things. कुछ लेने गए भूल गए क्या लेने गए, कुछ ढूंढ रहे हैं चाबी कहाँ रख दी, मिल नहीं रही है. So it happens to everybody. But if we take Vritti Life Brain Health, it has got Brahmi and it is great for brain health. Similarly, for immunity, we have got Vritti Life Immune Health, which has got Kalmeg, which has got Tulsi, and which has Kuteki. And Tulsi हम लोग winter में and हम regularly काटुकी and तुलसी हम regularly winter में use करते हैं. हर कोई अपनी चाय में तुलसी की चाय पीता है. तो तुलसी and Kalmeg is great, and even it has been seen that liver function improved with Kalmeg. So and immunity really goes up. You don't get cold and cough again and again. So I'm not making a medical claim. I am just sharing the experience that with immune health, there were very few episodes that cold and cough and immunity was great during the winter session, but no medical claim here. It is just our stories, and that is what you can tell other people, that this is our experience. If you use it, you might feel the same experience. Okay, and then we have Vritti Life Trifla, that is for our gut health, and this has got Amla, and आंवला एंड आंवला इसको एक और आरीटेक दैट इज उसको हरड़ कहते हैं हम लोग हिंदी में. सो दैट इज ग्रेट फॉर गट हेल्थ. और मैंने आपको बताया ना, गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो सारे सिस्टम अच्छे रहेंगे. गट हेल्थ अच्छा रहेगा, ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा, ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा, हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एंड I forgot to tell you, when we take adequate fiber, so it also helps with our microbiome. Okay, and that also again helps with the friendly bacteria. So this Trifla, immune health and brain health from Vritti Life, they are great products to improve your immunity and gut health. Very, 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 very good. So what we have here is community wellness. In our clubs, what we are doing is community wellness. We have online clubs, we have offline clubs, and we are bound by that common energy, we are bound by that common passion, and wellness is in our blood. Like the day we join Herbalife, we kindle that flame of well-being, and it registers here, and the whole 24 hours we are thinking only of wellness, how to get well, which product to use, so ideally we should be using all the products. We use all the products.
But what I want to say here is that core nutrition is something that everybody needs to use because body cannot manufacture. So protein is, vital not only to build muscle, it is for growth, for immunity, for good hair, for good skin, for nails, for everything, for your gut. Do you know all the immune cells? 70% of our immune cells are outside our gut. They are lining them. So if we don't get adequate protein, so जो सेल वॉल है इम्यून सेल्स की उनकी इंटेग्रिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो अगर वो सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाएगी. इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाएगी तो सब कुछ वी गेट प्रोन टू क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस. तो इसीलिए प्रोटीन का खाली फंक्शन मसल बिल्डिंग नहीं है. द इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन. So community wellness mein what we are trying to say is that we have to adopt good practices. On World Health Day, we have to do a wellness evaluation for our consumers, for our customers, and explain to them that how environment, their challenges. For good health, we need three things. We need fresh air. Do we have fresh air? Absolutely no. There is so much pollution all around. We need organic food. Now, do we grow our own food? Absolutely not. So we don't have farms. We don't live in farmhouses. There is no space. So all the food is not organic. And then, is our water clean? So we need fresh air, clean water, and pure food. And all three are not there. If the water was pure, we would not be drinking bottled water, right? So when these three, the environment is not okay, how can we be well? So that is why we need to adopt healthy practices so that on this World Health Day, for a brighter future, we have to work for our future where we can be healthier and happier. And in community wellness, that's what we do. We promote active, healthy lifestyle. We promote exercise, whatever, cardiac, strength training, whatever, dance, you can do any form of exercise. So science recommends 150 minutes of moderate intensity exercise per week. And one must remember that it's only 20% exercise. But you can never outrun a good diet. अगर आप 5 किलोमीटर भी दौड़ रहे हो और अगर अपने डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप अगर सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, you will never lose weight and you will never be healthy. So exercise alone cannot keep you healthy. It is 20% exercise and 80% diet. And diet should include adequate protein, good fiber, good fats, adequate hydration, 3 to 4 liters of water, 7 to 8 hours of sleep. And if we do this along with exercise, our walks, our cardio, our strength training, form groups, we all need some community. That takes care of our mental health. So our clubs are about physical, mental, social well-being. So it is not about physical health. So Herbalife, we are all agents of change. And we are the people who are going to make our futures seem bright by leading an active, healthy lifestyle. So it is all about community wellness. So we must promote our healthy shake. Our core nutrition is for everybody. Let people use all the products, but those who can't, one must start with core nutrition. That means Formula 1, Formula 2, Formula 3 and Herbal Lifetime. This is what is going to help you, perform at your optimum level, because you are going to get supplements, you are going to get adequate amino acids. And do you know one good thing? Soya protein is a complete protein. Protein is two types, incomplete protein and complete protein. Complete protein is what has all 9 essential amino acids. And incomplete protein means something or other is missing. So soya is a complete protein. So whenever we are consuming our shake, Formula 1 shake, we are all 9 essential amino acids. And that is why there is slow release of energy, there is
blood sugars are stable, your cortisol level is in check, your circadian rhythm is in check, you feel satiety, you don't feel hungry, you don't snack very often. So we have the best products on the face of this earth. This is science, and Herbalife, adopts these good practices, and that is what we have to give a message on World Health Day. How Herbalife wellness coaches can make a difference in people's lives by promoting healthy lifestyle, by decreasing the risk of chronic lifestyle diseases, and we can empower people. And as I said, not only physical health, mental health in our communities, and of course emotional health and social health, because we are talking to them, we are asking them how they are feeling, we are doing their follow-ups, online, offline, we are meeting them every day. And of course, with financial wellness, here is an opportunity for everybody, for students, for housewives, for retired people, for doctors, for engineers, everybody. And when you have financial wellness, everything falls in place, because you don't have to look at the right side. You can buy good food. You can have organic food. You can have the best supplements. You can have the best nutrition. We can use all our products, if we have financial wellness. And of course, Herbalife, as I said, gives so many gifts: physical health, financial freedom, vacations, lifestyle, personal development. So it is all there. So with Herbalife, we feel and look young, we slow down aging, and we can enjoy total wellness. That is what Herbalife is all about. And this is because our quality starts with our seed to feed process. We have our own raw materials, and then they are processed and they are manufactured in our world-class facilities. And we have been there. We have been to North Carolina. Our factory is so big that it can accommodate 14 football fields. We saw how random checks are being made. World's best scientific brains, scientists and doctors are working behind our products. And that is why we doctors, me and Dr. Nazir, believe in this, because we believe in evidence-based medicine. So, and Jim Rohn has said, from personal experience and our testimonies, we have enough evidence to prove that we can lead extraordinary lives. And we all lead extraordinary lives with our products. So this is what Herbalife is all about. So just as food causes chronic disease, it can be the most powerful cure. And we have the most powerful cure in our products. So that was all from my side. I wish you eat healthy, you feel healthy, you be healthy, stay with Herbalife rest of your life, you enjoy wellness. Thank you very, very much. Thank you very much for having me today. Wishing you all a very, very happy World Health Day again. Over to you, Sri. Thank you so much, Lavina ma'am. It was such a wonderful session. So much insights you shared. Yes, Rupesh, you can continue. Yeah, thank you so much, ma'am, for your valuable information. And all will be more than happy to listen you on the World Health Day with our Herbalife nutrition product range, how it's work and help in our daily nutritional requirements. Wish you happy World Health Day, and inside Waste Region preferred customers, associate and leadership, wishing you health, wealth and happiness on the World Health Day. Thank you so much, ma'am, once again from Waste Region. And over to you, Shrit. Would you like to do the closing? Yes, so